I hope all of you are getting this chapter. This chapter is little tricky and this chapter need little more brushing and more concept clearing. So please concentrate on the videos and the assignments which we are sharing with you. And by the end you people are able to learn this chapter. No need to worry at all. सिर्फ जो ट्रिक्स आपको बताई जा रही हैं उनको आप फॉलो करिए. ओके, today we are going to revise a topic complex tissue. First of all, let's understand what is the meaning of complex. Complex का मतलब ही complex है. Means the complex tissue is a tissue in which there is a group of different kind of cells. जहाँ पर अलग अलग तरीके की cells होती हैं, उनका एक group है that is called complex tissue. In plants there are two kind of complex tissue. One is xylem and another one is phloem. Now these xylem and phloem together they known as vascular tissue. एक साथ इनको हम क्या बोल सकते हैं? Vascular tissue. What is the meaning of vascular? I hope in 8th standard you read the chapter circulatory system in biology, or that is cardiovascular system. Cardio means heart, vascular means conduction. So through the blood we are able to conduct water, minerals and hormones, digested food, waste. In the similar way, vascular tissue here, xylem and phloem, they are able to conduct water, minerals and food to different parts of the plant. Okay. Now let's understand their structure. ये दिखते कैसे हैं? See, this is a xylem. This is the location of xylem, and xylem is present. Say this is xylem. Between the xylem there are certain kind of the cells. These cells are called cambium. Later on they form cork cambium, and we are going to discuss about cork cambium in detail in some another video. Okay, and around it there is another tissue, layer of a tissue, that is phloem. So this one is xylem, this one is phloem, this one यहाँ से हम देख लेते हो, and this is cambium. See, cambium, xylem, cambium and phloem. Now the very important question here is what is the location of xylem and what is the location of phloem. Phloem is present outside the cambium while xylem is present inside the cambium. How you can remember it? If you want to go for dinner, आप खाना भी खाना चाहते हैं और simply water पीना चाहते हैं. So if you want to go for a dinner, तो घर के बाहर आप खाना खाने जाएंगे या पानी पीने जाएंगे? बाहर पानी पीने कोई नहीं जाता. हाँ, बाहर डिनर करने के लिए बहुत लोग जाते हैं. तो फ्लोएम का मेन फंक्शन क्या है? फूड कंडक्ट करना. ठीक है. जाइलम का मेन फंक्शन क्या है? वाटर कंडक्ट करना. तो जाइलम का मेन फंक्शन है वाटर कंडक्ट करना. जा से जल, जा से जाइलम, फा से फूड, फा से फ्लोएम. सो फ्लोएम विच इज कनेक्टेड विद द फूड इज प्रेजेंट आउटसाइड और जाइलम कैम्बियम के अंदर होता है. तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ प्रैक्टिस कर लिया. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम इन डिटेल. लेट्स डिस्कस जाइलम फर्स्ट. Xylem is divided into 4 kind of cell. Number 1 is xylem parenchyma. I hope all of you remember, already we have discussed that parenchyma is living cell. So if we are drawing the structure of parenchyma, so parenchyma, this is a xylem parenchyma, this is a living tissue. Okay, they consist of a vacuole because parenchyma consists of vacuole to store food or water. They have nucleus because these are living cell, and the layer around them, their cell wall is made up of cellulose. Cell wall किसका बना होता है? इनका cellulose का बना होता है. और cellulose का कैसा डिपोजिशन है? Thin layer of cellulose is there. कैसे याद रखेंगे? P से parenchyma, P से पतली, पतली मतलब thin. So around the cellulose there is a layer of around the cell wall there is a layer of thin cellulose. Clear? The second one is
and this is a living tissue. Clear? The second is xylem fiber. Okay, xylem fiber, if you remember, fiber we have done sclerenchymatous tissue. In sclerenchymatous tissue we have read that these are of two types, sclerites and fibers. So fibers are always dead tissue. It is a dead tissue. This one is xylem parenchyma, I am writing in short, and xylem fibers are longitudinal tissues like this, and these are dead tissue. Okay, so this is xylem fiber. Okay, the third one is, and it's a dead tissue, third one is tracheids. This is the important one, a component of xylem. This is also dead, ये भी dead होता है, and it is a long T से tracheids, T से tall, it's a long and tapering at the end, ये end पर थोड़ा नुकीला होता है, leaf like structure होता है, and inside it there is some structures. These walls could be dissolved or these walls could be present like continuous plate like structure के जैसे हो सकते हैं, and their main function is to conduct water. Okay, the main function is to conduct water. Around it there is a layer of lignin. जैसे पेरेन्काइमा के चारों तरफ किसका डिपोजिशन था, सेल्यूलोज का, और जो स्क्लेरेन्काइमा इफ यू रिमेम्बर उसमें भी हमने डिस्कस किया था, डेड टिश्यू के अंदर लेयर किसका होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है. दे हैव द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड थिक डिपोजिशन ऑफ लिग्निन. लिग्निन का थिक डिपोजिशन होता है विच मेक इट इम्परमिएबल टू वाटर. सोचने की बात है, इफ इट इज सपोज टू कंडक्ट वाटर एंड इफ इट बिकम परमिएबल टू वाटर, ये तो फिर क्या होगा, खुद ही पानी को सोख करके बैठ जाएगा, वो नहीं हो सकता ना. क्लियर? The fourth one point is xylem vessels. Okay, now understand how tracheids and vessels are different. Tracheids are comparatively tall and vessels are comparatively broader in lumen. Cavity थोड़ा उनका ज़्यादा होता है. This one is xylem tracheids. Okay, and this one is xylem vessels. So T से tall, T से tracheids याद रहेगा. Okay. This is comparatively cylindrical shaped structure. They may have pit like structure. ऐसे ऐसे छोटे छोटे holes हो सकते हैं which help in conduction of water, or they may have slanting plate like structures and they also make a perforated walls बनाते हैं. These walls could be dissolved completely or partially. जरूरत के हिसाब से वो dissolve हो सकते हैं. So they help in conduction of water. This is a xylem vessel. So we have done all four components of xylem. Now let's understand. This one is also dead. Out of four, this is dead, this is dead, this is dead. अगला क्वेश्चन क्या बनता है? Name all the components of xylem and name, tell कि which one is living and which one is dead. ये आप कर सकते हैं. Tracheids and vessels में डिफरेंस पूछा जा सकता है, और हाँ मेनली यही क्वेश्चन बनते हैं. Function already we have discussed. It helps in conduction of water and minerals from root to upward direction. तो एरो सिर्फ ऊपर की तरफ जाएगा. Plus as this part is completely filled with water, तो ये एक अलग से कवच के जैसे काम करता है. ये अलग से एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा प्लांट को, बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब ऑफ वाटर. पूरी वॉल जो है वो ट्यूब से, जाइलम की ट्यूब से भरी हुई है, तो वो एक एडिशनल वॉल के जैसे काम करता है. आई होप इट इज क्लियर. नाउ मूविंग अहेड वी हैव टू डिस्कस फ्लोएम. व्हाट इज फ्लोएम? फासे फ्लोएम फासे फूड. सो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम? टू कंडक्ट फूड. अब एक चीज और याद रखिएगा, बहुत ही बारीक बात है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इफ यू आर गोइंग फॉर अ हायर स्टडी इन बायोलॉजी स्पेशली. Okay, xylem conduct water while phloem translocate food. क्योंकि xylem का कंडक्शन कैसे होता है? सेल टू सेल, ये सेल फिर ये सेल फिर ये सेल फिर ये सेल, ये एक लॉन्गिट्यूडनल पाइप जैसे बनता है. फूड का रीलोकेशन होता है, ट्रांसलोकेशन होता है, लीफ टू डिफरेंट पार्ट. पहले खाना लीफ में बना,
अब वहाँ से वो स्टेम में शिफ्ट हो गया, वहाँ स्टोर होगा, वहाँ से रूट में शिफ्ट हो गया, वहाँ स्टोर होगा. दैट्स वाई वी यूज द टर्म ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. नाउ फ्लोएम इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स. तो एक चीज क्लियर हो गई, फंक्शन क्लियर हो गया फ्लोएम का. नाउ फ्लोएम कैन कंडक्ट फूड इन एनी ऑफ द डायरेक्शन. लीफ से नीचे भी जाएगा क्योंकि रूट को भी खाना चाहिए, और लीफ से ऊपर भी आएगा बिकॉज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेम और डिफरेंट ब्रांचेस ऑल्सो नीड फूड. उनको भी फूड की रिक्वायरमेंट है. सो वो बाई डायरेक्शनल वो फूड कंडक्ट कर सकते हैं. क्योंकि द फूड इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन फ्लोएम, दैट्स वाई इट इज नॉट प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ एडिशनली लाइक जाइलम. वो जाइलम के जैसे एडिशनल सपोर्ट मैकेनिकल स्ट्रेंथ का नहीं प्रोवाइड करते हैं. प्लस व्हाट इज द लोकेशन, मैंने आपको बताया खाना खाने हम बाहर जाते हैं तो फ्लोएम का पोजीशन बाहर की तरफ है. ये सिर्फ याद करने के लिए, आपका अपना कोई तरीका याद करने के लिए हो सकता है. फर्स्ट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा. ओके, वन आई मिस आउट इन जाइलम. जाइलम को हमने जाइलम ही नाम क्यों दिया है? उसका नाम कोई मोनू टोनू चिंटू मिंटू क्यों नहीं रखा गया? एक्चुअली इन लैटिन लैंग्वेज जाइलम मीन्स वुड. और क्योंकि जाइलम का जो मेच्योर पार्ट होता है, जब जाइलम डेड हो जाता है, ऑलरेडी डेड टिश्यू है वो, लेटर ऑन इट कन्वर्ट्स इनटू वुड. वो वुड में कन्वर्ट होता है. दैट्स वाई इट इज नोन एज जाइलम. आप में से बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते होंगे ये सारे नाम हम लैटिन लैंग्वेज में ही क्यों लिखते हैं? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज है, वो बोलने चालने की भाषा में इस्तेमाल नहीं होती है. तो उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो स्टेट टू स्टेट चेंज नहीं होती हैं. इसलिए सब पाइजम सटाइवम बोलेंगे, इसलिए सब होमोसेपियंस ही बोलेंगे. इसलिए साइंटिफिक नेम जितने भी रखे जाते हैं वो जनरली लैटिन लैंग्वेज पे ही रखे जाते हैं. एनीवे, फ्लोएम पैरेन्काइमा हमें पता है ये लिविंग होता है. अब दोबारा हम इसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं. फ्लोएम फाइबर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, इट इज अ डेड टिश्यू, नो नीड टू डिस्कस अगेन. The third main component is sieve tube and companion cell. If you remember in chapter 1 of cell, we have already discussed that sieve tube is not consist of nucleus. sieve tube के पास में nucleus नहीं होता है. So should we consider it dead? कायदे से उसको डेड होना चाहिए, बट ये डेड नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस इज लिविंग, दिस इज ऑल्सो लिविंग. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सीव ट्यूब को हम लिविंग क्यों कंसीडर करते हैं और इनका अरेंजमेंट किस तरीके से है, या ये डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? अभी हम सबसे पहले वो डायग्राम बनाते हैं. ठीक है, दिस इज कंपेनियन सेल. नाउ कंपेनियन सेल consist of, these are living cell, ये living cell होते हैं. and already we have discussed that living cell always consist of nucleus. so they have a big nucleus. अभी आपको पता चलेगा why they have big nucleus. and they consist of abundant cytoplasm. cytoplasm भी comparatively इनके पास में काफ़ी ज़्यादा होता है. और अभी आपको पता चलने वाला है कि क्यों साइटोप्लाज्म ज़्यादा है, वाई द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज बिग. ओके, नाउ दिस वन इज सीव ट्यूब एंड दिस entire is sieve tube. This one is sieve plate. sieve plate perforated है, so it can transfer food easily. Okay, and this one is phloem parenchyma. ये phloem parenchyma है. Now if you are looking on the diagram, आपको थोड़ा confusion हो रहा होगा. मैडम ने phloem parenchyma और phloem कंपेनियन सेल ऑलमोस्ट एक जैसे ही बना रखे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्या है? बिल्कुल पता चलेगा. सबसे पहले हमने क्या बोला था कि कंपेनियन सेल कंसिस्ट ऑफ अ बिगर न्यूक्लियस. कंपेनियन सेल कंसिस्ट ऑफ अ हायर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म. इन कंपैरिजन ऑफ दैट फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा. ओके, दिस वन इज कंपेनियन सेल
दिस वन इज sieve ट्यूब एंड दिस इज sieve प्लेट. ओके, चलिए अब मुद्दे की बात यह है कि कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस बड़ा क्यों है भाई. वाई दे हैव मोर साइटोप्लाज्म? बिकॉज दिस sieve ट्यूब और sieve ट्यूब दो तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया. तीसरा क्वेश्चन हमारा डाउट ये था कि मैम आपने पिछले वीडियो में बताया कि न्यूक्लियस नहीं है तो वो लिविंग नहीं होगा, बट यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, उसके बावजूद हमने इसको लिविंग कंसीडर किया है. क्यों? एंड दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज sieve ट्यूब कैरी द साइटोप्लाज्म ऑफ कंपेनियन सेल. ये यहाँ से कंपेनियन सेल का साइटोप्लाज्म उधारी में लेके बिल्कुल अपना मस्त काम चलाती है. सो sieve ट्यूब कैरी द साइटोप्लाज्म ऑफ कंपेनियन सेल. That's why sieve tube considered as a living tissue, and this is only a reason the cytoplasm and the nucleus is comparatively high in companion cell यदि हम उसको sieve tube से comparison करते हैं. क्लियर है? फ्लोएम पैरेन्काइमा इसको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ताकि ये फूड को कंडक्ट स्टोर करने में हेल्प कर सकता है. अगेन फ्लोएम पैरेन्काइमस के सपोर्ट में क्यों है हमें पता है. Phloem parenchyma is to store food. It has to store food. It has a bigger vacuole also, क्योंकि इनको क्या करना है, फूड को स्टोर करना है. क्लियर? सो हाँ, वन एक इम्पॉर्टेंट वर्ड, कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म एंड फर्न. अब जिम्नोस्पर्म और फर्न क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म एंड फर्न दैट इज बोथ आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. फर्न आते हैं टेरिडोफाइटा ग्रुप में और जिम्नोस्पर्म का अपना एक ग्रुप है. दोनों के अंदर यदि आपको जिम्नोस्पर्म देखने, आपके घर में पाइन का पेड़ होगा, दैट इज ऑल्सो अ जिम्नोस्पर्म. टेरिडोफाइटा इज द फर्स्ट प्लांट ग्रुप फ्रॉम वेयर द वस्कुलर बंडल इंट्रोड्यूस. वो पहला प्लांट ग्रुप है फर्न का या टेरिडोफाइटा का जहाँ पर सबसे पहली बार हमने वस्कुलर बंडल के बारे में बात की है. इससे पहले एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, दे डू नॉट हैव एनी वस्कुलर बंडल. उनके पास में वस्कुलर बंडल नहीं होता है. सो टेरिडोफाइटा में सारे वस्कुलर बंडल के पार्ट्स उतने ज़्यादा डेवलप नहीं हैं. दैट्स वाई कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म एंड फर्न. One more important, phloem parenchyma. This phloem parenchyma is absent in monocot plants. ये monocot में नहीं होता because monocot does not require that much amount of food to conduct in comparison of dicot. बाकी एडिशनल सपोर्ट में sieve ट्यूब काम करेगा ही, sieve प्लेट काम करेगा ही. दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस कुड बी आस्क्ड टू ड्रॉ और टू लेबल. रीड दिस इंटायर टेबल. हाँ, एक और चीज़ रह गई आपकी, फ्लोएम फाइबर. This phloem fiber is have importance for economic value. Economic value का मतलब क्या है? मार्केट में इससे अच्छा पैसा कमाया जा सकता है. कैसे? देखिए, coir of coconut that is a phloem fiber. जूट के बैग बनते हैं, जूट की ड्रेसेस बनती हैं, जूट का आपका मैट्रेस बनता है, जूट के स्लीपर बनते हैं. क्या कुछ नहीं बनता जूट का. जूट के बेड बनते हैं, सोफा बनता है. वो सब जूट कहाँ से आता है? कुछ भी नहीं है. ये पूरा का पूरा फ्लोएम फाइबर है. ओके. इसी तरीके से रस्सा, जो आपकी रस्सी आप घर में यूज़ करते हैं, कितनी सारी चीज़ों के लिए रस्सी यूज़ होती है. खाट बनाने के लिए, चेयर बनाने के लिए, और बहुत सारे यूजेस हैं उसके रस्सी के. तो वो रस्सी भी हम किससे बनाते हैं? वो भी यही कॉटन, इसका फाइबर ही है, फ्लोएम का. कॉटन फाइबर जिससे आपके कपड़े बनते हैं, दैट कॉटन फाइबर इज ऑल्सो फ्लोएम फाइबर. या फ्लोएम फाइबर को हम और क्या कहते हैं? बास्ट फाइबर कहते हैं. हम क्या बोलते हैं? बास्ट फाइबर. सो इन होल कपड़ा बनाना है, रस्सी बनानी है, बैग बनाना है, जूते चप्पल बनाने, सब कुछ फ्लोएम फाइबर से बनाया जा सकता है. बाकी जाइलम एंड फ्लोएम आर द वस्कुलर टिश्यू विच हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड. सो आई होप आपको समझ आया होगा. यू हैव टू रिवाइज दिस इंटायर टेबल टुडे, लर्न ईच एंड एवरी वर्ड. इफ़ यू हैव एनी डाउट, किसी भी एक शब्द का मतलब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू आर मोस्ट वेलकम. आई एम रियली हैप्पी टू लिसन योर डाउट्स और योर क्वारीज. तो वो पूछिए, इस प्लेटफॉर्म पे पूछिए, आप व्हाट्सएप पे पूछिए, कॉल करके पूछिए. दैट्स इंटायर योर विश, बट कीप आस्किंग and keep doing, keep learning, keep reading. Till then, goodbye, take care.